Hello everyone. Good morning to all. This is Surita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 2, microorganism, friend and foe. In today class we discuss about this chapter, introduction of microorganism. In previous class we already understand what is microorganism. A large of living organism around us. We see in around us with plant, animal, microorganism around us. We can see most of the living organism with our naked eye. हम ज्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी नेक्ड आई से इजीली देख सकते हैं. However, there are a large number of other organisms which are so small, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा नंबर में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो बहुत स्मॉल है. That is not possible to see them with our naked eye. Okay, next one is what is microorganism or microbes, the living organism which cannot be seen with our naked eye and can only be observed through a microscope are called a microorganism. Okay, so those organisms we cannot able to saw and we cannot cannot visible with our unaided eye are called a microorganism. They only observed through, they only seen through a microscope. Here is a picture of microscope and this one is slide. Okay, with the help of microscope we saw the invisible microorganism. Okay, what is microbiology? The science which deal with the study of microorganism is called a microbiology. The branch of science which deal with the microorganism are called a microbiology. I think it's clear to you. The scientists who study microorganisms are called microbiologists, and those scientists who want to study the microorganism about their structure, about their infectious states, and about the any function do microorganism. They study about that person called a microbiologist. Okay, and the first scientist name is a Leeuwenhoek. Okay, the first scientist name is Antony Leeuwenhoek, who described the microorganism. He is a Dutch scientist. Okay, or he is the first one who studied and who observed in a living cell first time to have the microscope. Okay, that time not a modern microscope is there, only simple type of a microscope there. और वो microscope, वो जो simple microscope था वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने खुद ने बनाया था. Okay, he made itself. Okay, where do microorganisms live? You think about the anywhere, any state, any place, anything you think about, any place, any there, here, there, anywhere, anywhere, everywhere microorganisms are present everywhere. Some live alone. कुछ microorganisms जो होते हैं ना साथ में नहीं रहते, अकेले अकेले alone रहते हैं. ठीक है, और कुछ most of the microorganisms when they have in a colonies, तो कुछ microorganisms कैसे रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं. तो उस पूरे उनके ग्रुप को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉलोनी वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑल्सो. दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड अ यूनिसेलुलर सेल, एंड दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ one or more cell are called a multicellular microorganism. They are found in every kind of environment, just like a desert, polar regions, hot springs, anywhere, any environment they are found. हर environment में microorganism present होते हैं. They are found in air also, soil also, and in water bodies like sea, lake and pond. That means कि microorganism present is saline water, maybe fresh water. Okay, तो stagnant water and moving water सब environment के अंदर जो microorganism है they are present. They also present inside our body. हमारी body के inside में भी present होते हैं. जैसे डेकन एक्सट्रीम कंडीशन, जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती है ना जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे हॉट स्प्रिंग में, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है फेवरेबल नहीं होती, पोलर रीजन्स में, डेजर्ट में, मार्शी लैंड में,
ओके तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर, मे बी एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, every type of maybe soil also, water bodies also, microorganism present in any extreme conditions also. So microorganism present in a everywhere. Okay, so next major group of microorganisms are divided into a 5 major group. First one is bacteria, and second one is fungi, and third one is protozoa, and fourth one algae, and fifth one is virus. We read about the virus, some points. Virus is different to others. वायरस क्या है, डिफरेंट है अदर्स से. मे बी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी से थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज वायरस एक्ट एज अ नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग. ओके, व्हाई दे आर नॉन लिविंग? बिकॉज व्हेन दे आर प्रेजेंट, व्हेन वायरस प्रेजेंट इन अ environment, they not free to reproduce itself, they not free to increase their numbers. Okay, so that's why virus is a non-living thing. When viruses enter into the any body, any animal body, plant body, maybe bacterium body, they reproduce itself. Okay, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को reproduce करते हैं, then अपने numbers को increase करते हैं. Okay, तो this is a viruses. Okay, तो next one is bacteria. Bacteria are very small and the simplest living organism. They can vary in size from 0.2 to 100 micron. जो बैक्टीरिया है बहुत स्मॉल साइज के होते हैं. मे बी सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने साइज में वेरी करते हैं 0.2 to 100 माइक्रोन के अंदर तक. ठीक है. एंड बैक्टीरिया आर फाउंड इन डिफरेंट शेप. बैक्टीरिया के जो शेप है वो डिफरेंट होती है. मे बी दे आर स्फेरिकल, मे बी दे आर स्पाइरल शेप. ओके, दे आर सिंगल सेल, यूनिसेलुलर बोलेंगे ऐसे. दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म have a single cell, they are called a unicellular microorganism. Okay, so they have a different type of shapes. Maybe first one is bacilli. This one is bacilli. Okay, this structure is called a bacilli. ठीक है. रोड शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, तो उन्हें बोलते हैं बैसिलाई स्ट्रक्चर. दे हैव अ बैसिलाई स्ट्रक्चर. ओके, एंड कोकाई इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. दिस वन इज कोकाई. कोकाई इज अ बैसिलस स्ट्रक्चर, बैसिलाई स्ट्रक्चर. ओके, तो फर्स्ट सॉरी, रोड शेप बैक्टीरिया जो होंगे वो कैसे होते हैं, बैसिलाई इन स्ट्रक्चर. कोकाई शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप के. स्फेरिकल शेप जिस भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगी वो कैसी होगी, बैसिलाई. ओके, सॉरी, कोकाई. ठीक है. नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया हैव अ कोमा शेप बैक्टीरिया. ओके, जस्ट लाइक दैट. Any bacteria have this type of structure called a vibrio structure. Okay, and fourth last one is spiral shaped bacteria. All are the spiral shaped bacteria. Okay, they have a spiral structures just like that. Okay, so this one is a spiral structure. So here we study about the bacteria. Bacteria shape, they have a different type of shape. First one is bacilli. They are rod in shape. Second one is cocci. They are spherical in shape. Third one is coma shape. This is a vibrio. And fourth one is spiral form. When bacteria present in spiral, they are called as spirilla. Okay, spirilla. Okay, they can be spherical, rod, spiral shape. Okay, they are single cell. Maybe they are single cell. Maybe they are multicellular cell. Okay, maybe they are found in colonies. ये maybe colonies में भी found होते हैं और सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल इज ई कोलाई, राइजोबियम. यू ऑलरेडी नोन अबाउट द राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो किस में हेल्प कर रहा है बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. बिकॉज प्लांट नीड अ नाइट्रोजन, बट प्लांट डजंट एबल टू एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर. ओके, तो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करने में एबल नहीं होते, बट विद थ्रू द राइजोबियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इट टर्न इनटू ए नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, देन प्लांट्स एब्सॉर्ब दिस नाइट्रोजन. ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प अस टू fixation in nitrogen. And E. coli present in our small intestine या intestine बोल सकते हैं. तो E. coli help in their
डाइजेशन में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, तो ई कोलाई प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन. Okay, so here is an example of bacteria is not only a harmful, not create a disease, not cause a disease. Okay, sometimes bacteria have a just like a friend, they help us, just like a rhizobium help us in a nitrogen fixation, E. coli help us digestion in our food. So that's why we said about the here. That's why our chapter name is a microorganism is our friend, and फॉय जो है एनिमीज जो है जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया सॉरी डिजीज को, दे ऑल आर द जस्ट लाइक आर एनिमीज, और जो हमारे को हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं. और हम चैप्टर में रीड करेंगे कि कैसे ये अपने आप को कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं वन बाय वन पॉइंट. ओके, आई थिंक बैक्टीरिया पॉइंट इज क्लियर, शेप्स क्लियर. I repeat these shapes: rod, cocci, and vibrio, and spiral. Okay, I think this one is clear. Next is a fungi. ठीक है, fungi is a group of diverse organisms that lack of chlorophyll. देखिए, fungi doesn't have any type of chlorophyll. Okay, तो any plant doesn't have a chlorophyll. तो so this one is depend on the our food, depend to other one. Okay, तो जब भी ये plants के अंदर grow होंगी, sorry fungi के अंदर खुद का chlorophyll present नहीं है, तो that's why they don't able to prepare their own food. Okay, so that's why fungi cannot prepare their own food. So maybe it feed on other dead and decaying material. You read about that on class 7th. Okay, already read about the saprophytic animals. Okay, sorry plants. तो saprophytes in saprophytes में हमने read किया था कि कैसे जो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं जो अपना फूड को डेड और डिकेइंग मटेरियल से एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स. तो फंजाई को क्यों नीड है डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपने फूड को इनटेक करने की? बिकॉज फंजाई उस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होता है जिसके अंदर लैक ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. फंजाई डजंट हैव अ क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल इज देयर. दे लुक लाइक अ प्लांट, फंजाई इज लुक लाइक अ प्लांट, but they can't have chlorophyll, so they do not make their own food. तो इस वजह से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते. they generally grow in a dark, warm and moist condition. ये स्पेशली कहाँ पर? डार्क रूम में, मॉइस्ट रूम में, वार्म कंडीशंस में इजीली ग्रो हो पाते हैं. इन प्रीवियस क्लास आई टॉकिंग अबाउट द वन एक्टिविटी, यू टेक अ 2 ब्रेड, उसके ऊपर आप 2 and 3 ड्रॉप्स या वाटर की स्प्रिंकल कर दें और उसको एक पॉली बैग में पैक करके वार्म एनवायरनमेंट में आप रख दीजिए. और सेकंड ब्रेड को आप ड्राई फॉर्म में ही पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए. ठीक है, आफ्टर 4 to 5 days आप ऑब्जर्व कीजिए कि वेयर फंजाई इज ग्रोन, कहाँ पर फंजाई ग्रोन होगी. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वार्म कंडीशन है वहां पर फंजाई ग्रो होगी. यू डू दिस एक्टिविटी एंड प्लीज told me your observation and result also. Okay, so I said about that fungi is generally grow in a dark, warm and moist condition. Okay, they are saprophytes, so they feed on dead and decaying material. They are normally called a unicellular like yeast. They are multicellular like mushroom organism. So fungi may be present in a unicellular maybe example is a yeast, or a multicellular organism like a mushroom also. This one is mushroom. Mushroom is used in to making a vegetables and medicinal use also. And when you prepare do this activity, which one आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे? अगर ये ब्रेड वाली एक्टिविटी करते हैं देन आपको ग्रीनिश ब्लैकिश पैचेस आपको ब्रेड के ऊपर दिखाई देते हैं. ठीक है, उन ग्रीनिश और ब्लैकिश पैचेस को जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे तो जो स्लाइड में उस माइक्रोस्कोप में जो आपको दिखाई देगा ना बेटा, वो ये स्लाइड दिखाई देगी. ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये स्पोर्ट्स फॉर्म में दिख रही है, मोल्ड्स की स्लाइड है. ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो छोटे छोटे वो आपको ग्रीनिश डार्किश पैचेस दिखाई देंगे, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं देन वो हमको इस तरीके की दिखाई देती है. ओके, तो दिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ फंजाई. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ. This class next microorganism is a protozoa.
ओके। तो प्रोटोजोआ मीन्स क्या होता है बेटा, फर्स्ट एनिमल, जो फर्स्ट एनिमल डिस्कवर हुआ था वो क्या है बेटा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर अ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई थिंक यूनिसेलुलर वर्ड यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके। तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटोजोन मीन्स क्या होता है बेटा, फर्स्ट एनिमल, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड इन अ सेपरेट किंगडम। चलिए, दे आर फाउंड इन अ पॉन्ड्स, ये स्पेशली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पॉन्ड्स में, लेक में, रिवर में एंड सी में। दे आर हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दे डिपेंड अदर फॉर फूड। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, दोज एनिमल्स डिपेंड देयर फूड टू अदर्स, है ना, मे बी डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली प्लांट्स पे, अदर एनिमल्स पे, अपने फूड के रिगार्डिंग किसी अदर पे डिपेंड होंगे। दे आर कॉल्ड अ हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स। एग्जाम्पल अमीबा। फर्स्ट पिक्चर जो आपको क्लियर दिखाई दे रही है वो कौन सी है बेटा, दिस वन इज अमीबा, ओके। एंड सेकंड वन इज पैरामीशियम, ओके। तो फर्स्ट कौन सी है, अमीबा, और सेकंड कौन सी है बेटा, पैरामीशियम है। जो प्रोटोजोआ है आर इधर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। प्रोटोजोआ दोनों तरीके की न्यूट्रिशन क्वालिटी को शो करता है, पर सेप्रोफाइटिक मींस क्या हो गया, दोज एनिमल या दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर फूड डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड इनटेक करते हैं, वी यूज द टर्म ऑफ अ सेप्रोट्रॉप्स, ओके। एंड सम प्रोटोजोआ आर पैरासिटिक। पैरासिटिक मींस दे फीड देयर फूड ऑन टू डिपेंड ऑन अदर फूड मटेरियल, मीन्स अदर बॉडी पे, इनकी बॉडी, ये किसी की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, देन वहां से सक करते हैं अपने फूड को, ठीक है। तो एक होस्ट की इनकी रिक्वायरमेंट होती है। होस्ट वर्ड क्या होगा, जिनकी जिस भी बॉडी के अंदर, मे भी सपोज करते हैं कि जो प्रोटोजोआ है किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो वो पर्सन की जो बॉडी है वो होस्ट के जैसे काम करेगी, ओके। और प्रोटोजोआ जो है वो पैरासाइट के जैसे वर्क करेगा, ओके। इन क्लास 7th में आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट में रीड किया था कस्क्यूटा के बारे में, जिसको अमरबेल भी उसका नेम है। तो वो कस्क्यूटा जो है येलो ट्यूबुलर कलर की होती है, वो अदर ग्रीन प्लांट के ऊपर क्या करती है, स्पाइरल फॉर्म में कवर करती है, देन अपनी रूट्स को उसके अंदर पेनिट्रेट करती है, देन न्यूट्रिशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करती है, ओके। तो जो ग्रीन प्लांट है वो होस्ट हुआ, और जो कस्क्यूटा है वो क्या हुई, पैरासाइट हुई। जस्ट लाइक दैट प्रोटोजोआ आर शो द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ओके। And it contain a chlorophyll, can prepare their food, maybe some protozoa, maybe one is an exception is euglena, ओके। तो ये प्रोटोजोआ के अंदर एक यूग्लिना एग्जांपल होता है, जिस जो दे इट इट हैव अ क्लोरोफिल, यूग्लिना हैव अ क्लोरोफिल, देन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके। अदरवाइज ऑल प्रोटोजोआ, मोस्टली प्रोटोजोआ आर पैरासिटिक इन नेचर। मोस्टली जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं नेचर के अंदर। हमारे को जो मलेरिया कॉज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज algae. We already known about that word, okay. Algae is a group of simple plants, okay. Algae को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, सिंपल प्लांट। सिंपल प्लांट्स मींस हम algae doesn't have a, algae don't have a any stem, any root or no leaves, okay. algae के अंदर हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, प्लांट्स की, सिंपल प्लांट्स की कैटेगरी में तो आती है, लेकिन प्लांट्स वर्ड थॉट करते हैं, हमें एक स्टेम दिखता है, एक रूट विजिबल होती है, एक लीव्स विजिबल होते हैं, बट algae doesn't have a algae don't have a no stem, no root and no leaves like other plants, okay. तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, जिससे ऐसा प्लांट जिसमें तो ना तो स्टेम है, ना रूट है, ना लीव्स है ना, तो ऐसे प्लांट्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है बेटा, वर्ड है थैलस। क्या वर्ड यूज बोल रही हूँ मैं, थैलस। तो एल्गी का जो शेप है वो किसके जैसी होती है, थैलस शेप होती है। थैलस मीन्स हम क्लियर हो रहा है, एल्गी की जो शेप है वो कैसी है, थैलस शेप है। मतलब उसमें हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दिस वन इज स्टेम, दिस वन इज लीव्स, दिस वन इज रूट, ओके। थैलस शेप एल्गी की शेप होती है, थैलस। आई थिंक इट्स क्लियर। दे आर वेरी इन साइज एंड शेप ऑल्सो। देखिए क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर है, ओके। ये वॉल्वॉक्स स्ट्रक्चर है। देखिए क्लेमाइडोमोनास फ्री फॉर्म में सिंगल, अकेला, एलोन रहता है, बट वॉल्वॉक्स क्या होता है, कॉलोनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉलोनी मींस मैंने आपको बता ही दिया था, ग्रुप ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब साथ में रहते हैं तो उसको कॉलोनी बोलते हैं। तो ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एल्गे स्पाइरुलिना, दिस वन इज स्पाइरुलिना,
ओके, ये भी एल्गी का एग्जांपल है, ठीक है। आपने आप के लिए चलिए होमवर्क है कि आप चेक करें कि स्पाइरुलिना कैसे हेल्प करती है, ठीक है, कैसे हमारे लिए एज अ फ्रेंड वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आप इस टॉपिक पे बात करेंगे, ओके। तो हियर वी स्टडी अबाउट द एल्गी, हियर वी सॉ एल्गी हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइज, ओके। They are varying in size, shape and habitat. Different habitat में present होती है. Maybe it present in a fresh water, saline water, and okay. They are unicellular. ये कैसे होते हैं? They made up of a single cell, so they are called a unicellular organism. Okay. Maybe algae is a Latin word. Algae का जो ये word है ना, वो Latin word होता है. इस Latin word का meaning क्या होगा बेटा? Seaweeds. क्या वर्ड है इसका मीनिंग? सीविड्स. दे आर और माइक्रोस्कोपिक तो है ही. दे डोंट हैव स्टेम, रूट, नो लीव्स लाइक अदर प्लांट, बट दे हैव क्लोरोफिल. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, ठीक है, दे हैव अ क्लोरोफिल, सो दैट्स व्हाई दे मेक देयर own food through photosynthesis. Okay, example of algae is Chlamydomonas, Spirogyra and Volvox. Here is the picture. This one is Chlamydomonas and this one is Volvox and this one is Spirulina. Okay. Okay, class. Next point we discuss in a next class. Okay.